Good morning students. Today we are going to start the chapter number 18 for revision. Firstly we start the choose the correct option. First is what is an egg of hen represent? जो egg है hen का वो क्या represent करता है? Cell. What is an egg of hen represents? Cell. Next, what is tissue a group of? What is tissue a group of cells? What is the tissue a group of cells? Third one, which of the following is able to change its shape? Which of the following is able to change its shape? Amoeba, white blood cells, both A and B, या none of these? Answer is both A and B. Amoeba and white blood cells are able to change its shape. Now next one, who acts as control center of activities of the cells? Who controls nucleus? Who controls nucleus? Now next one, what did Robert Hooke discover? Robert Hooke ने क्या discover करा था? Cell. Which is the best structural unit of the living organisms? Which is the best structural unit of living organisms? Cells. Which animal cell is long and branched? Which animal cell is long and branched? कौन सा सेल जो लॉन्ग होता है और ब्रांच होता है? नर्व सेल्स. ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉक डैश अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास. किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने. किसने ऑब्जर्व करा था? रॉबर्ट is called a zygote. The fertilized egg cell is called a zygote. The fertilized egg cell is called a zygote. Next, dash facilitates movement L and help in capturing food in amoeba. Dash facilitates a movement and help in capturing food in amoeba. कौन करता है? सीडोपोडिया. कौन करता है? सीडोपोडिया. नेक्स्ट, a dash in human blood can change its shape. White blood cells. कौन से सेल्स होते हैं? White blood cell in human blood can change its shape. Next, fifth one, the dash cell receives and transfer messages in our body. The dash cell receives and transfer messages in our body. The nerve cell. The nerve cell receives and transfer messages in our body. Okay. Next, sixth one, blue green algae is an example of किसका? जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोट्स का. किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोट्स. Blue green algae is an example of prokaryotes. Okay. Now next, the dash helps in the absorption of water and minerals in plants. कौन हेल्प करता है? Roots. कौन हेल्प करेगा? Roots. Roots help in absorption of water and minerals in plant. Body. Unicellular organism have one-celled body. True. Muscle cells are branched. Muscle cells are branched. It's false. The basic living unit of an organism in an organ. The basic living unit of an organism is an organ. It's false. Next, amoeba has irregular shape. Amoeba has irregular shape. It's true. The egg of a hen is a structure made up of many cells. The egg of a hen is a structure made up of many cells. It's false because it's made up of only one cell. Okay. Now next, amoeba is unicellular eukaryotic organism.
Amoeba is a unicellular eukaryotic organism. It's a true. Next, an organ is formed by various cells. An organ is formed by various cells. It's true. सॉरी, इट्स अ फॉल्स, बिकॉज जो ऑर्गन है वो सेल से कम्बिनेशन में नहीं, वो तो टिश्यू से बने हैं ऑर्गन. ठीक है, जो ऑर्गन है इज फॉर्म्ड बाय वेरियस सेल्स. ऐसा नहीं है, सेल्स से शुरुआत होती है ऑर्गेनिजम्स के बनने की, पर जो ऑर्गन बने हैं वो टिश्यूज के कंबाइन से बने हैं. सो इट्स अ फॉल्स. नाउ नेक्स्ट वन, द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और अ plant. It's a true. It's a in one sentence answer. First question is, what are used to study the detailed structure of a cell with microscope? क्या यूज करते हैं स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चर को सेल का? उस पर स्टेन डाई यूज करते हैं, ताकि क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए उस पर क्या करते हैं, डाई यूज करते हैं और उसको कलर कर देते हैं और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इन विच मैटर डू द ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वरी? इन विच मैटर डू द ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वरी? ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वरी इन साइज, shape and number of cells. Organs of organisms vary in size, shape and number of cells. Okay, now next one, from what does an organism with billions of cells begin life? From what does an organism with billions of cells begin life? An organism with billions of cells begins life from single cell, which is fertilized egg. From single cell, which is fertilized egg. An organism with billions of cells begins life from single cell, which is fertilized egg. Which is fertilized egg. Okay. Now, next one. State any two example of unicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल देने हैं. अमीबा एंड द पैरामोशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, व्हेन डू सीडोपोडिया Pseudopodia appears in amoeba during movement and capturing food. Pseudopodia appears in amoeba during movement and capturing food. Okay. Now next one. Mention the shape of red blood cell and white blood cell in human. In human, red blood cells are spherical in shape and the white blood cells have a irregular shape. Red blood cell have spherical in shape and white blood cell have a irregular shape in human. Okay. Now next, what cell wall gives to plant cells? Cell wall gives shape and rigidity to plant cells. जो सेल वॉल है शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है किसको? प्लांट सेल को. ओके, शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड टू प्लांट सेल. What is the common between cell membrane and nuclear membrane? Both of cell membrane and nuclear membrane are porous. दोनों क्या है? Porous हैं. Okay. Now, what is known as living structure of the cell? Protoplasm is known as the living structure of the cell. It includes two components, cytoplasm and nucleus. Next, what is gene in living organisms? Gene is a unit of inheritance. Gene is a unit of inheritance in living organisms. And what is a stain? Stain is colored chemical solution used to color part of the cells to study the detailed structure through microscope. Okay. Now 3-4 सेंटेंस इसमें स्केच करना था ह्यूमन नर्व सेल को और नर्व सेल पर क्या और कंट्रोल कर सकें. क्लियर. फिर हमने 2
एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। Unicellular organisms में they are made of only one cells, and the multicellular organisms they are made up of many cells. Amoeba and the bacteria Paramecium, it's an example of a unicellular organisms, and the multicellular organisms human, other plants and animals are the multicellular organisms. Okay, next हमने करा था explain the formation of pseudopodia and its function in amoeba। वो किसकी शेप कैसे, फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि अमीबा की इरेगुलर शेप है, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, वो अपनी वेरियस लेंथ को चेंज करता है, उसकी लेंथ बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जब उसे फूड कैप्चर करना है तो वो मूवमेंट करेगा और सीडोपोडिया बन जाएगा, ठीक है, तो वो अपने सीडोपोडिया में फॉर्म हो जाएगा। इसमें वो क्या करता है, अपनी लेग्स को फोल्ड करता है। फिर राइट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, वो क्या करता है, इट गिव्स शेप एंड रिगिडिटी टू सेल्स, प्रोटेक्शन करता है प्लांट सेल को, कहाँ से, वेरियस टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये सब थिंग से वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट वाल। ओके, नेक्स्ट जीन क्या है, जीन में आपको पता है क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम क्या करते हैं, जो जीन है क्रोमोसोम क्या ट्रांसफर करते हैं, जीन्स, तभी तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट साइंटिफिक रीजन, सॉरी डिटेल क्वेश्चन था, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला जाता है, आपको पता रेडी होता है, अदरवाइज एक ऑर्गेनिज्म रेडी नहीं हो पाता, क्योंकि जाइगोट था, ठीक है, जाइगोट पहले सिंगल सेल से बना था, फिर उसकी डिवीजन होगी, ठीक है, फिर वो जो जाइगोट है डेवलप होता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ पूरा ऑर्गेनाइजेशन जैसे फाउंड होता है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन जैसा बनता है, वो उसके पूरे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, राइट। पहले जाइगोट सिंगल सेल था, उसका डिवीजन हुआ तो एक पूरी बॉडी उसकी रेडी हो जाती है। फिर रीजंस थे कि लाइफ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन विद सेल से शुरुआत हुई थी, ठीक है, सिंगल सेल था, जाइगोट सिंगल सेल था, फिर वो सेल्स मल्टीप्लाई हुए आपस में, तो कितने सेल्स इंक्रीज हो गए, इसीलिए उसको बोला जाता है लाइफ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन विद अ सिंगल लाइफ, सिंगल सेल से ही शुरू हुई है, चाहे आगे उसमें मल्टीप्लिकेशन हुई, सेल्स बने और पूरा एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो गया। द सेल ऑफ एलिफेंट आर नॉट लार्जर इन साइज द सेल इन ए रैट, सेल में कोई वो नहीं होता, सेल सेम होते हैं, सेल ये नहीं है कि बॉडी पे डिपेंड करेगा, यदि उसकी इतनी बड़ी बॉडी है तो उसमें बड़ा सेल है या उसकी छोटी है, तो जो उसे फंक्शन परफॉर्म करना है वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो, राइट, फंक्शन तो उसका वही रहेगा। यदि नर्व सेल का फंक्शन है कि उसको कंट्रोल करना है और मैसेजेस कन्वर्ट करने हैं, तो उसमें रैट में भी वही रहेगा, राइट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है, चाहे उसकी बॉडी बड़ी हो चाहे उसकी बॉडी छोटी हो। फिर अनियन सेल और थिक सेल में डिफरेंस है, ये तो आपको पता है। ये अनियन सेल कैसे हैं, प्लांट सेल है, वो एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये तो तुम्हें अब कॉमन, नहीं तो तुम खुद भी अब लिख पाओगे, सारा चैप्टर रीड कर दिया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पता ही है आपको, वो सिंगल सेल से बना है, वो एक से ज़्यादा सेल से बना है मल्टीसेलुलर। फिर टिश्यूज ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम आर नेवर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में प्रेजेंट होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर के। मल्टीसेलुलर के फिश है, फ्रॉग है, आंट है, ये मल्टीसेलुलर है। फिर हमने मैच द फॉलोइंग्स करे थे, वाइट ब्लड सेल्स को हम किसके साथ मैच करते हैं, इरेगुलर शेप, रेड ब्लड सेल को स्पेरिकल शेप, नर्व सेल है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है, एंड मसल सेल है स्पाइंडल शेप के होते हैं। क्लियर। तो ये मेरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। इस चैप्टर मैंने फिर से आपको एक बारी रिवाइज करा दिया है। कोई भी आपका टॉपिक छूट गया हो तो आप उसको इस वीडियो से देख के भी लिख सकते हो। क्लियर। आज का जो ये हमारा वीडियो है फिनिश हो गया है। नेक्स्ट में हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 18 शुरू करेंगे। क्लियर।